Good afternoon, student. Today we will discuss a new topic that is related to the non-conventional energy resources. These topics are in very trends. The current scenario says energy should be renewable. Okay. Now, that's why uh, I will tell you about the topic related to the renewable energy resources, that is heat power and biofuel, heat power from and biofuel from biomass. Now, here you can see the introduction portion. In the form of introduction, the slide is very clear for its significance. ठीक? तो बायोफ्यूल या फॉसिल फ्यूल का हम किस तरीके से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली क्या है कि कोई सपोज दैट हम बायोमास की बात करते हैं, ठीक? तो बायोमास से अगर मैं एनर्जी जनरेशन की बात करेंगे तो वो क्या हो सकता है, रिसाइकिल भी हो सकता है, रिन्यू भी हो सकता है और वो अनलिमिटेड एनर्जी हमको दे सकता है, ठीक? तो प्रेजेंट सिनेरियो में हम ऐसा एक सोर्स का यूज़ करेंगे जो कि हमको अनलिमिटेड एनर्जी दे, जिससे कि किसी की भी डिमांड पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उसकी डिमांड बढ़ती जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कि क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, पब्लिक सेटिस्फेक्शन वहाँ पे ज़रूरी है। फॉर द पब्लिक सेटिस्फेक्शन we have to upgrade towards the renewable energy resources. And the first point is here the biofuel, also known as agrofuel, and basically these fossil fuels are derived from biomass as well as biowaste. अगर हम बोल रहे हैं बायोमास से बायोवेस्ट वेस्ट से डेराइव होता है, इट मीन्स कि क्या होता है, ऐसे मान लो कि जो गार्बेज जो कि जिसमें कि जैसे एज अ वेस्ट निकलता हो, ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट का वेस्ट मटेरियल का हम यूज़ करके अगर एनर्जी जनरेशन करें तो क्या होगा, इको फ्रेंडली भी होगा और जो चीज़ें हमारी वेस्ट हो रही है उसका क्या हो जाएगा, यूज़ भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट सिनेरियो में हम क्या होता है, वेस्ट से यहाँ पे एनर्जी जनरेशन का काम होता है, तो फ्यूल बायोमास प्रोडक्शन के तरीके से हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। And these fuels can be used for any purposes, but the main use for which they have to be brought is in the transportation sector. The most important feature of biomass is that they are renewable sources of energy. What we were talking about, we were talking, and exactly uh, we are talking about the non-conventional energy resources, that is renewable energy resources. And such type of resources can be renewed again and again. If your demand is increasing, doesn't matter, your demand can increase, but if we follow the conventional methods for energy generation or non-renewable energy resources, then what happens? Your demand will increase, but your demand would not be fulfilled because the energy resources are limited. So, uh, for to satisfy your demand be fulfilled, then for that, which type of resources should be there? Definitely, renewable sources should be there. And various types of renewable sources may be like natural resources like coal, petroleum, as well as nuclear fuels. Coals, petroleum, these fuels are in limited stock. They are tending to finish. So we have to use alternatives in comparison to these options. Now,
we develop such type of system, system which are totally subjected for to grow the biofuel field. If we are talking about the grown for biofuel, then if we see the today's scenario, then here you can see the first point, and the first point says the use of biofuels has expanded throughout the globe. बायोफ्यूल का क्या हो रहा है यूज़ यहाँ पे बढ़ते ही आ रहा है एक तरीके से, अगर देखिए आप यहाँ पे, ठीक। Some of the major producers and users of biogas are Asia, Europe, and America. These are those areas where the biogases are used on the first priority. ठीक, ऐसे कंट्रीज, ऐसे सेक्टर्स के लिए क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, नॉन रिन्यूएबल renewable resources या non conventional energy resources. Now there are several factors that decide the balance between biofuel and fossil fuel. ठीक है, क्या होता है कि बायोफ्यूल और फॉसिल फ्यूल के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश होना जरूरी है, तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? Those factors are cost, availability, as well as food supply. It means cost as well as availability and food supply are those factors that decide the balance in between biomass as well as fossil fuel. There is only so much land fit for farming in the world, and growing biofuels necessarily detracts okay. I think सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं यहाँ से, हम कहाँ तक है यहाँ देखते हैं। आई थिंक वी आर फॉर द लास्ट पॉइंट. द लास्ट पॉइंट सेज अबाउट द पॉपुलेशन. If the population grows in upward direction, then what happens? पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्या क्या हो रहा है, एनर्जी की कंजम्पशन उसी हिसाब से बढ़ रही है. एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बट रिसोर्सेज क्या है, वो नहीं बढ़ रहे हैं. तो रिसोर्सेज अगर बढ़ने की हम बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज की ही बात करेंगे, ना कि नॉन रिन्यूएबल की, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल लेवल अपग्रेड नहीं हो सकता, बढ़ेगा नहीं, वो हमेशा घटेगा नहीं, और एक समय ऐसा आएगा कि सब खत्म हो जाएगा. ठीक, तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या भी करना होगा, उस चीज़ से बचने के लिए आई थिंक आपको फॉलो करना होगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. ठीक, तो क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, बट क्या है, हमारे पास उस हिसाब से सप्लाई नहीं है. तो डिमांड और सप्लाई को अगर बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में लाना है, तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को फॉलो करना है. Some other points related to the introduction of biomass as well as fossil fuels. Some of the agricultural products that are specially grown for the production of biofuels. As you can see, the United States, Brazil is famous for sugarcane. Europe is famous for sugar beet as well as wheat. China, cassava and sorghum. Asia for the palm oil, as well as India for the jethro. Now, what the current trend says, this is not the well updated details regarding the biofuel consumption, but here some point says that the biodiesel accounts for about 3% of German markets as well as 0.15% of US markets. Okay, so these data are related to the renewable resources are overcome by these countries.
ठीक है, ये पॉपुलेशन है। अबाउट 1 बिलियन गैलन्स ऑफ बायो डीजल आर प्रोड्यूस्ड एनुअली। ठीक है, यूएस और ब्राज़ील प्रोड्यूस करते हैं 87%। टोटल वर्ल्ड का जो फ्यूल एथनॉल है उसका 87% केवल यूएस और ब्राज़ील प्रोड्यूस करते हैं। एथनॉल गैसोलीन से अगर ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है और क्या होता है, एमिशंस घटते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ yeah, if you have to improve the life of the engine, then you have some requirement related to biodiesel. The biodiesel, when the biodiesel is added to the petroleum-based diesel, then what happens? The emission got reduced as well as engine life improve. Now, if we uh, if we talk about the applications of biofuels in the form of transportation, the transportation says the leading application because vehicles requires clean, dense as well as high power fuels in the liquid state. आपको क्या चाहिए, अगर एप्लीकेशन आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की चाहिए तो व्हीकल्स को साफ सुथरे डेंस ज़्यादा पावर वाले फ्यूल की ज़रूरत होती है और वो लिक्विड स्टेट में ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बायोफ्यूल यूज़ कर सकते हैं। एंड द सेकेंड एप्लीकेशन रिलेटेड टू biofuels. The second application related to the biofuel, that is power generation. If you talk about the power generation with the help of biofuel, in solid biomass fuel like fuel, and the third point for the application of the biofuel is that heat. For the heat generation, biofuel is used. Now, if we if we have some curiosity related to define the term biofuel, then we can define the biofuel as any fuel whose energy any fuel whose energy is obtained through of processes of biological carbon fixation. ठीक, and what is the carbon fixation? ये कह रहा है कि कार्बन फिक्सेशन कई सारे जो प्रोसेस होते हैं बायोलॉजिकल कार्बन फिक्सेशन के, उन बायोलॉजिकल कार्बन फिक्सेशन के कई सारे प्रोसेस होने के बाद जो एनर्जी हमको मिलती है, दैट फ्यूल इज बायोफ्यूल. व्हाट इज द कार्बन फिक्सेशन? एक्चुअली इन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री we talk about the hydrocarbons compounds, and in those hydrocarbons compounds some processes occurs, and during that process some conversion happens. And if a process that converts carbon dioxide into hydrogen molecule, that would be found in a living organism. अगर कोई केमिस्ट्री का प्रोसेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड को किसी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो हमेशा किस ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. ठीक, नो, इफ द प्रोसेस अकर्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इट इज नोन एज बायोलॉजिकल कार्बन फिक्सेशन. ठीक, अगर कोई एक ऐसा प्रोसेस है केमिस्ट्री का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा प्रोसेस कैसे क्या कहलाएगा? बायोलॉजिकल कार्बन फिक्सेशन. आई थिंक क्लियर होना चाहिए. ठीक है, नाउ प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. हियर you can see a slide related to a lesson learned from nature. What we should learn a lesson from the nature. You know that the harmony should be balanced in between at least two phases, in between nature as well as human being. If the harmony is disbalanced, then what happens? The cycle will be disturbed, and you can suffer from
various type of problems. Now, a lesson learned from the nature. You know what is the photosynthesis? Photosynthesis is a process, and which type of process? This process is a biological carbon fixation. बायोलॉजिकल कार्बन फिक्सेशन ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। बायोलॉजिकल कार्बन फिक्सेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एडजस्ट करता है, ठीक है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन फिक्सेशन, हियर द सनलाइट strikes on the tree. Here the tree receives some amount of water. Then what happens? It produces oxygen, and oxygen goes in outside from the tree. It means oxygen goes in nature, and CO2 is observed by the tree. And what happens? All things is fine during these processes. Now, if we see the reaction, or you can see the biological carbon fixation reaction of the photosynthesis. Here you can see the twice moles of CO2 when combines with the 4 moles of water. If the water as well as carbon dioxide are in the form of reactant, then what we get products, I think we are getting some products like glucose, oxygen as well as water. Sorry, carbohydrates, oxygen as well as water. Carbohydrate, oxygen as well as water are the products, and in which condition these are the products? When the reactants are carbon dioxide as well as water. Next slide. What is biomass? Actually, biomass is a dead organic matter. डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है बायोमास आपका। अगर हम एग्जांपल देखें बायोमास का, तो मैट ऑफ वेल्स, स्टॉक्स ऑफ शुगर केन्स और कॉर्न्स, ठीक। बायोमास के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? सबसे पहला वाली टाइप की जो बात करेंगे, वुडी। वुडी इज a very important type of biomass in which we talk about the coconut, oil palm, pine, etc. Generally, what is the motive of woody biomass? These type of woody biomass is used on the behalf of its calorific value. आपको कैसी कैलोरीफिक वैल्यू बायोमास चाहिए, या क्या आपका मोटिव है किस टाइप के आपके पावर प्लांट में, तो उस टाइप से हम वुडी बायोमास का यूज़ कर सकते हैं। वुडी बायोमास में कोकोनट, ऑयल पाम, पॉपुलर एंड पाइन, दीज आर द वुडी बायोमास टाइप्स। जनरली इसका यूज़ क्या होता है? ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आते हैं, देन इनका क्या होता है? कम्बशन होता है, ठीक। कम्बशन होता है तो क्या होता है? हीट जनरेट होती है, और फर्दर जो हीट जनरेट होती है वो वाटर को वहाँ से मिलेगी, और जब वाटर को मिलेगी तो वाटर से स्टीम जनरेशन का काम हो जाएगा, और स्टीम जनरेशन जब जाता है, स्टीम जाता है टरबाइन में, स्टीम टरबाइन में, तो टरबाइन उस हीट एनर्जी को फर्दर क्या करेगी? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, और फर्दर टरबाइन से अटैच होता है जनरेटर, जनरेटर से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बायोमास का डायरेक्ट यूज होता है, ठीक। ये तो था वुडी एग्जाम्पल्स फॉर द बायोमास। अगर नॉन वुडी एग्जाम्पल्स की बात करें फॉर द बायोमास, तो एग्जाम्पल्स फॉर नॉन वुडी बायोमास आर कॉर्न, शुगर केन, सोयाबीन्स, etc. These are the biomass fuel is to produce different type of liquid fuels, okay, liquid biofuels, and these are indirect biomass, ठीक है। जो वुडी बायोमास होता है वो डायरेक्ट बायोमास होता है, जिसको डायरेक्टली यूटिलाइज कर लेते हैं, और नॉन वुडी बायोमास जैसे शुगर केन, सोयाबीन्स, कॉर्न, इसका क्या होता है? इनडायरेक्ट इनका यूटिलाइजेशन करते हैं, इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन करते हैं, इसलिए ये कौन सा बायोमास हो गया भाई? इनडायरेक्ट बायोमास। मोटिव भाई वही होता है, मोटिव में इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं पावर प्लांट को।
ठीक। भाई बायोमास को यूज़ करना अच्छा ही है ना, कम से कम स्टॉक जितने रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो हमारे डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बायोमास बेस्ट ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। अब भाई बायोफ्यूल जो है कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं बायोमास की हेल्प से, तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कुछ मेथड्स हैं। Actually the slides related to the production of biofuel from the biomass. Biomass energy can be converted into liquid biofuels generally in two methods. बायोमास एनर्जी जो है कन्वर्ट हो सकती है लिक्विड बायोफ्यूल्स में, कैसे? दो मेथड से। हम सबसे पहले मेथड वन की बात करते हैं। मेथड वन में स्टार वगैरह जब ग्रोथ होते हैं, when the star grows and through the process of fermentation then ethanol produced। क्या होता है, स्टार्च को जब हम क्या करते हैं, रिएक्टिव करते हैं, तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन हमको क्या मिलता है, इथेनॉल। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड टू, जब प्लांट्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं तो नेचुरली वो ऑयल वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, तो इन ऑयल को क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और जैसे ही गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और फिर हम इसको डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर डीजल इंजन यूज कर सकते हैं। ठीक, एंड दिस ऑयल कैन बी फर्दर ट्रीटेड टू प्रोड्यूस बायोडीजल which can be used for various purposes. Now, this slides is related to the biofuels specifications, how the biofuels having some significant role in energy generation. And here, the biofuels are counterparts. Biofuels are counterparts to traditional fossil fuels. बायोफ्यूल में अगर इथेनॉल की बात करें तो फॉसिल फ्यूल क्या होगा, गैसोलीन या इथेन होगा। ठीक है, बायोफ्यूल में बायोडीजल की बात करें तो फॉसिल फ्यूल क्या होगा, डीजल होगा। बायोफ्यूल में मेथनॉल की बात करें, फॉसिल फ्यूल क्या होगा, मीथेन होगा। अगर बायो ब्यूटेनॉल की बात करें तो फॉसिल फ्यूल हमारे पास गैसोलीन या ब्यूटेन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बायोफ्यूल क्या है, काउंटर पार्ट होता है। Now, comparing energy content, the energy content of biodiesel is about 90% that of its counterpart petroleum diesel. The energy content of butanol is about 80% that of gasoline. और अगर हम बात करें इथेनॉल की तो ये 50% होता है इसके कंपैरिजन में गैसोलीन में। बायोफ्यूल कार्बन फुटप्रिंट, मोस्ट बायोफ्यूल्स आर एट लीस्ट एज एनर्जी डेंस एज coal but produce less carbon dioxide than coal। ठीक है, कोल जितना एनर्जी जनरेट करता है उसके कंपैरिजन में मान लो बायोफ्यूल जो है कम एनर्जी जनरेट करता है, लेकिन क्या भी है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन है कम करता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। वाई रिन्यूएबल, इनको रिन्यूएबल क्यों कहते हैं? ठीक, बायोफ्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास और बायो वेस्ट। इतना क्लियर है? बायोफ्यूल हमको मिला कैसे? बायोफ्यूल एक्चुअली में हमको मिला बायोमास से, बायो वेस्ट से। ठीक, and these can be replenished year after year through sustainable farming practices। ठीक, क्या हो सकता है, इनको रिसाइकिल किया जा सकता है, इनको रिन्यू किया जा सकता है, तो इसलिए बायोमास एंड बायोफ्यूल क्या है, रिन्यूएबल है। फॉसिल फ्यूल्स require millions of years to form। Fossil fuels are not renewable। It means gasoline, ethane, diesel, methane, gasoline, butane, these are not
these are non-renewable energy resources. But ethanol, biodiesel, methanol oil, biobutanol, these are the renewable. ये दिमाग में बिठा लो कि फॉसिल फ्यूल जो होता है रिन्यूएबल नहीं होता है, ठीक है। बायोमास एज वेल एज बायोफ्यूल क्या होता है, रिन्यूएबल होता है। जैसे यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स कभी रिन्यूएबल नहीं होते। ग्रीन एनर्जी, yes, renewable is not the same as green. Renewable energy source simply does not deplete. Example: solar, wind, hydroelectric. A green energy is also good for the planet because it does not harm ecosystem, contribute to acid rain, or worsen global warming. And the solar energy is green and renewable. Uh, if we talk about the green and renewable both, then the solar energy is that type of energy which comes under the category of green and renewable energy resources. All green energy is considered renewable, but not all renewable energy is green. जितने भी ग्रीन एनर्जी है वो सारी की सारी रिन्यूएबल होती है, ठीक है। लेकिन सारी की सारी रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो ग्रीन नहीं होती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो प्लैनेट्स को आपको फुली जो है उसको सपोर्ट करें और उसको वहाँ में प्लैनेट्स में क्या हो, तो प्लैनेट्स के लिए क्या हो, अच्छी हो, ठीक है। तो सारी की सारी ग्रीन जो होती है, ग्रीन एनर्जी वो रिन्यूएबल होती है, बस सारी रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। Biofuels are the examples of renewable energy sources. Biofuels क्या है, एक एग्जाम्पल है renewable energy sources का। That are not always green. That are not always green because they produce greenhouse gases. Greenhouse gases are not beneficial for the environment. Now, वुडी बायोमास की बात करें, तुमको पता है जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए अगर जैसे थर्मल पावर प्लांट को डिजाइन करना है, और थर्मल पावर प्लांट को डिजाइन कैसे करना है, मान लो कि तुमको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का यूज़ करके तुमको थर्मल पावर प्लांट डिजाइन करना है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब भाई वहाँ से उस पर हीट जनरेशन का काम लोगे, उससे हीट जनरेशन में काम लोगे तभी तो उसको फर्दर मैकेनिकल में कन्वर्ट करोगे, मैकेनिकल में फर्दर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करोगे, तभी थर्मल पावर प्लांट का जो है मोटिव पूरा होगा। तो अगर हम वुडी बायोमास की बात करें, तो वुडी बायोमास yes, if we talk about the woody biomass, सबसे पहले वुडी बायोमास में हम लेते हैं कोकोनट। इन एरिया में अबंडेंट कोकोनट ट्रीज, अगर कोई ऐसा एरिया जहाँ पे कोकोनट के ट्री बहुत हैं, तो यहाँ से हमको क्या होगा, आफ्टर हार्वेस्टिंग द मीट और एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट, द hull is converted into a bioliquid। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एडिबल पार्ट होता है कोकोनट का, उससे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से बायोलिक्विड निकाल सकते हैं। तो बेनिफिट क्या होता है, इससे हम किसी चीज़ को मतलब बर्न एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली बर्न कर सकते हैं। और and this has resulted in bioliquid being used for cooking, particularly in underdeveloped countries। बहुत मान लो कोई डेवलप कंट्री है तो उनके पास लिमिटेड सोर्सेज होंगे, कोकोनट ट्रीज अगर है तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग वहाँ से हम जो है बायोलिक्विड वहाँ से निकाल सकते हैं, बायोमास का यूज़ कर सकते हैं। ऑयल पाम, द ऑयल पाम प्रोवाइड्स बायोमास इन टू वेज। देयर वी हैव सम वेज, like first phase is the fruit produces iron which can be harvested and chemically converted to produce biodiesel। कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कि
जिससे तेल निकलता है, ऑयल निकलता है, और उस ऑयल की हार्वेस्टिंग करें और केमिकली उसको कन्वर्ट किया जा सकता है बायोडीजल में। And after the oil is harvested, however, the hulls can be burned directly. Thus, oil palm provide both direct as well as indirect biomass. And these are another woody biomass, popular as well as pine. The popular family includes trees like the aspen and cottonwood. ठीक है? Now, these are the two types of trees, and these trees are valued for their rapid growth, reasonable resistance to disease, ability to provide the habitat, and ability to be cultivated from sprouts cut from adult trees. Reduces overall cost in the long term. लॉन्ग टर्म में जब कास्ट क्या होता है, ओवरऑल कास्ट कम होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज द पाइन. पाइन इज वैल्यूड फॉर many of the same reason as poplar. It grows fast, it is easy to cultivate. इनका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है करना बहुत आसान होता है, ठीक है, एंड इट्स रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव टू ग्रो. If we talk about the history of the biofuel, these are the history related. I think you can take a screenshot, and actually these are the history related to the biofuel. We have not to study these topics in very deep. So take a screenshot, जैसे पॉइंट्स नंबर देख सकते हो वन. तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हुई जो कि बायोमास मटेरियल का यूज़ किए इन द फॉर्म ऑफ बर्निंग वुड. वहाँ से क्या हुआ, इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया. फिर 1826 में क्या हुआ, इथेनॉल जो है पहली बार तैयार किया गया, और कौन थे, हेनरी हेनन थे, ब्रिटेन में जिन्होंने निकाली. उसके बाद सैमुअल मोरे ने डेवलप किया एक इंजन जो कि इथेनॉल एंड टारपूल पे क्या चलता है, चल सकता था, रन कर सकता था, फंक्शन कर सकता था. देन 1815 में इथेनॉल का यूज हुआ लाइटिंग फ्यूल के लिए. और देन 1860 में ड्यूरिंग द यूएस सिविल वॉर, liquor tax was placed on the ethanol whiskey to raise money for the war. The tax increased the price of ethanol so much that it could no longer compete with other fuels such as kerosene and lighting devices. The ethanol production declined sharply because of the tax. Our production level did not begin to recover until the tax is replaced in 1906. फिर इसी तरीके से सारे के सारे क्या हुआ, बायोफ्यूल का, बायोमास का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ. तो इस तरीके से सारे के सारे जो है धीरे धीरे हमको सोर्सेस जो पता होने थे बायोमास बायोफ्यूल से, वो सारे के सारे इंक्रीज हुए. ठीक है, यहाँ तक 2003 पे जैसे पहुँचे. फिर यहाँ पे इसका क्या हुआ, ऑक्सीजनेटिक फैक्टर इसको ये प्रीफर हुआ गैसोलीन के लिए. How we can classify the biofuels? Actually, the biofuels may be classified into the three generations. The first generation are also called as conventional biofuels or non-renewable biofuels. They are made from the things like sugar, starch, or vegetable oil. Note that these are all food products. Okay, these are all food products, and any biofuel made from a food stock that can also be consumed as a human food is considered a first generation biofuel. ठीक है, कोई बायोफ्यूल जो कि कंज्यूम भी किया जा सकता था, जैसे एज ए ह्यूमन फूड, ह्यूमन उसका यूज़ कर सकते थे, तो वो सारे जो है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कैटेगरी में है. ठीक, और फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कैटेगरी में जो है वो कहाँ से आया भाई, शुगर से, स्टार्च से, वेजिटेबल आयल से. ठीक है, इन सबों का कंजप्शन होता है जो कि ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट
द स्ट्रक्चर ऑफ बायोफ्यूल इटसेल्फ डज नॉट चेंज बिटवीन द जनरेशन। बायोफ्यूल का जो इटसेल्फ का जो स्ट्रक्चर होगा वो कभी चेंज नहीं होगा इन बिटवीन द जनरेशन, बट सोर्सेज चेंज हो सकते हैं। ठीक है, पहले में सोर्सेज ऐसे हैं कि जिनका ह्यूमन यूज़ करते थे, जैसे वेजिटेबल आयल, शुगर, स्टार्च एक्सेट्रा। Okay, thank you. Rest of the portion I will cover in next lecture. And those lectures would be also related to the first generation biofuels. फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स का जो सिग्निफिकेंस वो आपको लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में ही बताएंगे। ओके, थैंक यू।